Okay, so what we have discussed in last lecture, we have discussed about the FDisk utility, which is the first step in Yes, storage sir. management. Yeah. So we have discussed this FDisk utility, or how we can use this FDisk utility to create a different partition on your physical storage. Okay, so this is a very important and useful utility tool which is available in Linux operating system as well as the Windows operating system. So no need to install it. Already that is available in the shell. And we have discussed the different options of this FDisk, which is also used to list all the partitions on a particular storage, physical storage. Okay, and similarly, we use this FDisk utility to create a partitions also, or to manipulate the partitions. And how we can do this, we have already discussed in last lecture. Okay, so these are the snapshot we already discussed. That is how we can list the partitions onto that by using -L option. For the specific partition we have -L, and the device name you can specify. Then if you want to create a partition, you have to use the fdisk command along with the device name. Always you can specify the absolute address of that particular device. Okay, so always all the storage devices are available in /dev. So absolute path is /dev/sda. If you are having another hard disk, that is called as sdb. Okay, and these are the different menu, that is interactive menu will be provided to perform the different operations on the storages. Just like to change the bootable flag, we have option A. Then to delete a partition, we have option D. For listing a partition, we have option P. Okay, so different options, that is just like to print this menu. To get the help, we have M option. If you want to create a new partition, then N is used. For printing a partition table means if you want to print all the partitions which we have created in the storage or the physical drive, then P option will be used. If you don't want to save whatever changes you have made, then use a Q option. T for toggling, U for that is changing the units of that, V for verify the partition table, and W for writing that partition table into what is say MBR. It will create the record of all the partition into the MBR by using W option, and it will come out of that FDisk utility. So we already discussed all these options. Okay, so now we will go for the next part, that is formatting a partition. Okay, so once you create a partition, so what is the next step? That you have to format a partition. Formatting is nothing but creating a file system onto that partition, because that is a raw partition, and you need to create an index to store the data onto that particular partition. Okay, just like in books, when you want to store, we have the index, so we can make an entry into the index, we can put the data onto the pages, and we have an index. In that index we can make an entry. जैसे आप practical journals लिखते हो, so you can write down the journal first, and then you can write down the page number, and when that journal is completed, you can write down the entry of that particular practical into the index page along with the page number. Okay, so similarly formatting is similar to that. So you need to format a partitions before using that. In Windows operating system we have a format command, and we can specify the drive later to format the partition. But when you go for a Linux operating system, we have a command to create a partition. But before that, what file systems are available, what type of file systems are available onto the Linux operating system, that we can see. So these are the different types of file systems are available in Linux. That is ext2, ext3, ext4, XFS, and JFS. Basically, ext2, the file system of Linux is started with the ext2. Okay, so that is a older file system which is available in the earlier Linux operating system.
Then after some of the improvements are made into the ext2 file system, some new features are added, just like you can see that quick recovery. Okay, that is a important options which is added into that particular ext2, and the name is given as a ext3. So that is the advancement in the ext2 partition, and the name file system, and the nomenclature is given, that is the ext3. Means quick recovery feature is added into the ext2 partition file system, and the name is given, that is ext3. Okay, and then some other features are added into the ext3 then later on after some years, and the new file system is available or added into Linux operating system, that is called as the ext4. The older versions or the recent latest versions of this Linux operating system will by default will use a ext4. Okay, ext4 मैक्सिमम आप पुराने अगर लिनक्स के वर्जन्स देखोगे, फेडोरा वगैरह, फेडोरा 13 14, तो दे यूज ext4 फाइल सिस्टम फॉर देयर पार्टीशन. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना पार्टीशन बनाता है, तो व्हेन ही फॉर्मेट दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, by default it will take the ext4 partition or ext4 file system onto that partition. Okay, and XFS JFS earlier, this is designed by one author. This is not a part of your operating system. So as this is a open source and free operating system, so people will do a research into that domain. So some of the authors have designed their own file system for the Linux, and that is called the XFS and JFS file system. And that particular file system is nowadays very popular file system on the Linux. So basically, if you are using your Linux system, then if you are storing your own data, that is for the single user mode. So in that scenario, ext4 file system is sufficient. So it will hold all kind of data, that is audio, video, and text information. Any kind of file we can store onto the ext4 file system. Okay, but the speed is very slow as compared with the other XFS and JFS. So XFS is basically designed for audio and video servers, because when we talk about the database server, the data speed is very required is very less. But if you compare the audio or video server, just like if you are using a YouTube, so data size is very huge if you compare a video file with the text or database file. So definitely that required a special kind of file system which can deliver the data in more faster way. So keeping this thing in mind, that particular author has implemented one file system, and that is called the XFS. Okay. Another file system is that is JFS. Okay, JFS is again popular nowadays, because that particular file, that is called the journalized file system. So that particular file system are specially designed for the database server, because when we talk about the database server, the transactions is very high. Continuously data will be updates onto that. The data delivery rate will be very high. So in that scenario again, you require a special kind of file system, and JFS will offer that particular features. Okay, so if you go for the Fedora 13, 14 or 15 or up to Red Hat 6, we have ext4 as a default file system on your Windows, on the Linux operating system. But on the Red Hat 7 and Red Hat 8 operating system, we have a XFS file system, जो partition Linux system बनाता है by default onto the SDA. The file system on that particular partition is the XFS partition. Okay, तो earlier जो उसके पहले के जो versions थे, उसमें ext4 by default use होता था. Earlier, ext4, ext2, ext3 and ext4 are only file system which are available onto the Linux system. If you want to use this XFS or JFS file system, then what you have to do, through package management, you have to download the packages for XFS and JFS. We will see what are the package name. That is called the XFS procs and JFS utils are the name of that particular packages.
XFS Prox is a package name for installing this XFS file system, and JFS Utils is a package name for installing this JFS file system. So if your machines don't have that particular XFS and JFS file system, so manually by using package management, you can download this package and install that particular file system onto your machine. And then after you can create this file system on any partition. But nowadays, Red Hat 8 will offer you inbuilt XFS file system. Okay. And you can directly use this XFS file system for any partition. So is it clear what is this file system? Just like in Windows, we have a FAT and NTFS. Linux have ext2, ext3, ext4, XFS and JFS file system. And along with that, it also supports a file system of other operating system also. So we will see that. So is it clear what is this types of file system? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So almost most recent is ext4 and XFS are additional. So nowadays Red Hat is having the XFS file system. Okay. Now how we can create this file system on the partition? Okay, so once you create a partition using fdisk command, okay, then what is the second step? You have to create a file system. So how we can create a file system? We have one more command after this. So in this second step, we have to use this command that is called as the mkfs command. Okay, so this is a mkfs utility which is used to create a file system onto the partition. The mkfs command stands for the make file system, is utilized to make a file system. Okay. Which is a system for organizing the hierarchy of directories, subdirectories, and files on a formatted storage. Okay, so this particular utility can be used to format any partition or your floppy disk or a USB drive. Okay, so simple command is mkfs and then you have to specify a file system which you want to create onto that partition. Okay, so mkfs utility, how we can use this mkfs utility? This is the syntax, that is mkfs dot file system and partition name. Simple command है. क्या करना है? mkfs stand for the make file system. डॉट देना है और जो भी आपको फाइल सिस्टम उस पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल करना है या क्रिएट करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई द फाइल सिस्टम नेम इन स्मॉल केस लेटर्स एंड जो भी पार्टीशन है, जैसे आपने पार्टीशन डिफाइन करके रखा है तो HDB6 यू आर डिफाइंड and if you want to create a ext2 file system onto that, then you can execute this command, that is mkfs.ext2 space and the partition name ev/hdb6. If you want to create the ext3 file system, then again mkfs.ext3 and the partition name. Okay, so similarly you can use the mkfs command, then followed by the dot and followed by the file system name. Okay, so this is a file system name space and then the partition name. तो इस तरह से आपको क्या करना है, command execute करना है. This is similar to the format command which is available in Windows operating system. तो यहाँ पे format use नहीं होता है, यहाँ पे होता है mkfs, that is make file system. And if you want to create a XFS or JFS file system, so as already told you, that we have to install a package for that particular file system. So this is the package name, that is XFS Prox.
So by using yum command, yum install XFS Pros, you can first install that particular file system on your machine. And by using this command, that is mkfs.xfs/dev/partition name, that is SDB6. So again, similar to mkfs, ext2, ext3, you have to use the xfs.xfs and the partition name. If you want to create a JFS file system, then what package you require? Yes. What is the package name for this? JFS utils. JFS util is the package name. So again, you can install it first and then use the command mkfs.jfs and the partition name. Okay, so this is a simple mkfs command. कुछ नहीं है, partition बनाने के बाद आपको immediately ये command execute करना है before mounting that particular partition. So this is the second step, that is creating a file system onto the partition. तो उसके लिए command क्या है? mkfs, that is make file system. कैसे use करना है? mkfs dot, and you have to write down the name of that particular file system, either ext2, ext3, 4, xfs or jfs. Okay. Similarly, this particular file system is for a normal partition which is used by the user. So whatever partition we will create and whatever partition we can format using mkfs is used by the user. So these are the user's partition. So as already we had discussed that operating system can have the swap partition, which works along with the RAM, that is random access memory. Okay, and it will provide the support to the RAM for swapping the data, and that is called as the swap space. So by default, your operating system will create a swap space out of your physical storage, that is onto the SDA. Okay, और अब additionally, जैसे आपको लगता है कि यार नहीं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने 1 GB का ही स्वैप स्पेस बनाया एंड आई वांट टू ऐड वन मोर स्वैप स्पेस ऑफ 1 GB, तो मेरा स्वैप स्पेस कितना होना चाहिए? 2 GB का होना चाहिए. ओके, तो आफ्टरवर्ड यू कैन ऑल्सो ऐड दिस पर्टिकुलर स्वैप स्पेस इन योर सिस्टम. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू दिस. तो आप जब पार्टीशन क्रिएट करते हो तो उस पर्टिकुलर पार्टीशन में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि दैट पार्टीशन विल बी यूज एज अ स्वैप स्पेस. टॉगलिंग करके वो आईडी चेंज कर सकते हो. आई विल शो दैट एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड आफ्टर दिस. सो we can define the partition as a swap partition. Then after we can use this particular swap partition to create an additional swap partition for your Linux operating system. So this is information about the swap partition, that is swap in a Linux. Swap space in a Linux is used when the amount of physical memory is full. If the system needs more memory resources and the RAM is full, inactive pages in memory are moved to the swap space. While swap space can help machines with the small amount of RAM, it should not be considered as a replacement for more RAM. Swap space is located on hard drives. तो कहाँ से create किया जाता है swap space? From the hard drives. जो आपका physical storage है, secondary storage, उसी से ही हम लोग क्या करते हैं? We can create a swap space. So swap space can be a dedicated swap partition, a swap file, or the combination of swap partition. And these are the standard recommendation for the swap. तो कितनी आपके पास रैम है उस हिसाब से कितना स्वैप स्पेस होना चाहिए आपके मशीन में, वो रिकमेंडेशंस है बाय द रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज इफ योर मशीन इज हैविंग 4 GB ऑफ रैम और लेस, यू रिक्वायर्ड 2 GB ऑफ स्वैप स्पेस. तो अगर आपके मशीन के ऊपर 1 GB है तो आप एडिशनली 2 GB इससे क्रिएट कर सकते हो. 4 GB to 16 GB है तो 4 GB रिकमेंडेड. इफ 16 GB to 64, 8 GB. 64 to 256, that is 16 GB, and 256 to 512 GB, then 32 GB swap space will be required. तो अगर आपके Linux ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट इतना स्वैप स्पेस क्रिएट नहीं किया है तो डोंट वरी, later on you can add this. So what you have to do for that? Again, you can define a partition. When we create a partition in fdisk utility, one of the partition can be defined as a swap partition. Okay, and that partition can be used for creating a swap space. Okay, so command क्या है उसके लिए?
The command is mkswap. We are not creating a file system, so mkfs यहाँ पे use नहीं होगा. mk means make and swap, because we are creating the swap space. The additional command is there for creating the swap partition. So this is just like defining the swap partition. Okay, so what is the command name? mkswap. और जो भी पार्टीशन आपने रिजर्व करके रखा था स्वैप पार्टीशन की इन fdisk utility, you can use that particular partition name in front of this command. तो mkswap जिसे sdb5 reserved for swap partition, okay, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. When we use a fdisk utility, तो आपका जो पार्टीशन रहेगा वो स्वैप पार्टीशन करके ही डिफाइन चाहिए. किसी भी पार्टीशन के ऊपर आप ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. ओनली द पार्टीशन व्हिच इज रिजर्व्ड एज अ स्वैप पार्टीशन कैन बी यूज्ड अलोंग विद दिस कमांड. ओके, सो वंस यू क्रिएट अ स्वैप पार्टीशन, वंस यू डिफाइन दैट पर्टिकुलर sdb5 एज अ स्वैप पार्टीशन, नाउ यू हैव टू एक्टिवेट दैट स्वैप पार्टीशन. वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है. तो दिस इज द सेकंड एक्टिविटी व्हाइल क्रिएटिंग द स्वैप पार्टीशन. तो एक पहला है कि आप fdisk यूटिलिटी में जब पार्टीशन डिफाइन करो तो उसका आईडी डिफाइन करके रखो कि वो स्वैप पार्टीशन हो. दूसरा आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड दैट इज mkswap एंड द पार्टीशन नेम. सो इट विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर पार्टीशन एज द स्वैप पार्टीशन. मींस वी कैन, इट विल क्रिएट अ फाइल सिस्टम ऑफ स्वैप ऑनटू दैट पार्टीशन. वो करने के बाद अपने आप वो एक्टिवेट नहीं होगा. सो मैन्युअली यू हैव टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर पार्टीशन. And for activating that partition, we have a command that is swap on. Okay, swap on means we are activating that particular swap partition. So that particular, when you execute this swap on command onto this particular partition name, so what it does, it will add that particular space. जैसे आपने अगर sdb5 1 GB का है और अगर आप उसको swap on करते हो तो immediately 1 GB swap space will be added in kernel swap memory. ओके, और पुराना अगर उसका स्वैप स्पेस 1 GB का होगा और अगर आपने sdb5 1 GB का किया है एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस स्वैप ऑन कमांड, योर स्वैप स्पेस विल बी नाउ ऑफ 2 GB. ओके, सो स्वैप ऑन कमांड से वो क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा. एक और कमांड इसमें यूज होती है. इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस पर्टिकुलर पार्टीशन, देन यू कैन गो फॉर द स्वैप ऑफ. आपको ऑफ करना है. जैसे आपने ऑन किया था, आपको उसको डिसेबल करना है. तो उसके लिए यहाँ पे कमांड नहीं लिखी है, बट यू कैन रिमेंबर फॉर डीएक्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन, व्हाट इज द कमांड नेम, दैट इज स्वैप ऑफ. एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द पार्टीशन नेम. तो जैसे आप स्वैप ऑफ बोलोगे तो जो 2 GB स्वैप स्पेस हुई थी तो 1 GB आपका ऑफ हो जाएगा. एंड अगेन योर सिस्टम इज हैविंग अ 1 GB ऑफ स्वैप स्पेस. सो इज इट क्लियर व्हाट इज दिस स्वैप पार्टीशन? Yes, sir. Okay, and how we can create a swap file system onto that? For activating that, we have a swap on and swap off command. And if you want to confirm either that particular swap partition is activated or not, because when we execute this command, it will not give any what is notification to us. Okay, so you can confirm it. जैसे मैंने कहा था कि लॉग फाइल क्रिएट करता है सिस्टम. dmesg is a command we use to read the log file, and tail -n1 क्या करेगा, it will read. So again we are use a piping operator here. So dmesg will read the log file and tail -n1. तो जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे स्वैप ऑन, तो इमीडिएटली उसकी एंट्री क्या होता है, इस पर्टिकुलर लॉग फाइल में होती है. एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग द लास्ट फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉग फाइल. So it will display कि स्वैप ऑन किया करके वो मैसेज जो एंटर किया होगा लॉग फाइल में, that will be displayed onto the screen. तो बताएगा कि स्वैप स्पेस इज एडेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्टीशन. इस तरह का कुछ मैसेज आएगा. ओके, नहीं तो आपके पास दूसरा और एक कमांड है, दैट इज free -m. तो ये कमांड अगर आप यूज करते हो तो यू कैन यूज दिस कमांड बिफोर एक्टिवेटिंग दिस स्वैप पेज. उसमें आपको स्वैप पार्टीशन दिखाएगा और कितनी मेमोरी स्पेस है उसमें वो दिखाएगा इन मेगाबाइट्स. एंड देन आफ्टर यू कैन एग्जीक्यूट द स्वैप ऑन कमांड एंड देन अगेन एग्जीक्यूट द free -m कमांड. तो वो पहले जैसे 1 GB रहेगा, 1024 बाइट्स, ओके, MB. एंड देन आफ्टर जैसे आप स्वैप ऑन करोगे
तो नाउ दैट पर्टिकुलर स्वैप स्पेस विल बी 2048. तो जैसे आप उससे डिफरेंस देख सकते हो कि अर्लियर दैट इज 1024 बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्वैप ऑन कमांड, एंड देन दैट पर्टिकुलर स्वैप पार्टीशन स्पेस विल बी नाउ 2048. तो उसका मीनिंग क्या होगा कि डेफिनेटली व्हेन वी activate that swap partition, that is activated, and the swap space will be added into the swap memory. Okay, so these are the two commands which is used to confirm either your swap partition is activated and the swap memory is added into the kernel's swap memory or not. So will it be okay? Any doubt in this swap partition? No, sir. Sir, if we have not activated our swap partition using swap on command, then that DMESG will not show that particular log, no? It will not show. Yes, yes. डेफिनेटली लॉग एंट्री जब ये एक बार ना तो अपने आप वो लॉग एंट्री करता है. अगर वो लॉग एंट्री नहीं है इसके लिए स्वैप के लिए, स्वैप ऑन का अगर मैसेज उस लॉग एंट्री में नहीं, तो दैट डिफाइन कि आपका स्वैप पार्टीशन हुआ ही नहीं है, एक्टिवेट नहीं हुआ. तो कुछ और लॉग एंट्री बताएगा वो इन दैट केस. हाँ, कुछ और जो भी लास्ट एक्टिविटी आपके मशीन के ऊपर जो भी होगा, दैट इंफॉर्मेशन दैट विल शो. हमें क्या है, स्वैप वाली मैसेज चाहिए वहां पे. ओके सर, अंडरस्टूड सर. और दूसरा वे है कि फ्री माइनस एम कमांड. ये सिंपल है. फ्री माइनस एम जो है वो स्वैप पार्टीशन का फ्री स्पेस बताता है आपको. तो बिफोर एक्टिवेटिंग द स्वैप पार्टीशन यू कैन एग्जीक्यूट इट. लुक फॉर द साइज ऑफ दैट स्वैप पार्टीशन अर्लियर, एग्जीक्यूट द स्वैप ऑन कमांड. अगर वो साइज चेंज हो रहा है, आपने जैसे 1 GB का पार्टीशन वो अगर 2048 हो रहा है, तो दैट विल कंफर्म यू दैट पर्टिकुलर स्वैप पार्टीशन इज एक्टिवेटेड. फिर से आप स्वैप ऑफ करके देखो. ओके, स्वैप ऑफ एंड द पार्टीशन नेम एंड अगेन चेक द फ्री माइनस एम. तो वो साइज जो बड़ा था वो कम होना चाहिए. तो इसका मीनिंग है कि आपका स्वैप पार्टीशन प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है, एक्टिवेट भी हो रहा है और डीएक्टिवेट भी हो रहा है. ओके, तो these are the ways to cross check either that is working properly or not. Will it be okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yeah. Yes sir. This is one of the utility. Once you create a file system onto that particular partition, Tune2FS is a tool. I will not go in more detail of that. So this is again an important utility. Means once you create a file system, it will assign different parameters to a particular partition. Okay, that will be divided into a number of blocks and all this thing. Okay, so later on, if you want to change any parameters of that particular file system, then this particular utility will be used. So that is called the Tune2FS. So Tune2FS stand for the Tune2 file system. Tune2 file system. FS stand for the file system. Okay, तो utility use कैसे करना है? Simple है. Tune2FS -L and partition name. तो it will list all these particular properties of that particular partition. तो आपने partition बना दिया, मगर उसको लेबल नेम दिया है कि नहीं दिया है. ओके, और जैसे एक ये होता है माउंट चेक पॉइंट होता है ना. तो इसमें एक चीज होती है कि माउंटिंग करते हो पार्टीशन को, तो माउंटिंग के बाद जैसे आपने 100 माउंटिंग दिए तो दैट इज कॉल्ड द माउंटिंग पॉइंट. तो आफ्टर 100 माउंटिंग योर फाइल सिस्टम विल बी चेक फॉर द कंसिस्टेंसी. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द माउंट पॉइंट. तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें. ओके, तो यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो इससे आप -L ऑप्शन से आप लिस्ट कर सकते हो कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज उसमें सेट किए वो. ओके, and by using these options you can change the values of that is using same command, that is Tune2FS -C0 -M0. okay, तो जैसे -C ऑप्शन क्या करता है, सेट द नंबर ऑफ माउंट्स बिफोर फाइल सिस्टम चेंज गोस टू n. तो जैसे आपने माउंट पॉइंट आपकी सिस्टम पार्टीशन के लिए डिफाइन कर दिया कि 10 बार माउंट होने के बाद वो पार्टीशन चेक होगा. ओके, जैसे आप स्कैनडिस करते हो तो फॉर द कंसिस्टेंसी दैट पर्टिकुलर फाइल सिस्टम और दैट पार्टीशन विल बी चेक. तो बाय डिफॉल्ट अगर ये 10 है, ओके, माउंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज अ माउंट पॉइंट. आपको लगता है कि यार 10 बहुत ज्यादा हो जाता है, मींस 10 बार होने के बाद 10 टाइम्स मींस 10 दिन के बाद रोज अगर मैं माउंट कर रहा हूँ तो 10 डेज के बाद वो चेक कर रहा है. ओके, आई वांट टू सेट इट टू 30, यानी 1 महीने के बाद वो चेक करेगा. तो व्हाट आई विल डू,
I will use this option, that is along with the tune to FS utility -C, तो it will change the mount point number. तो मुझे लगता है कि नहीं, वो चेक होना ही नहीं चाहिए, है ना, कभी भी वो चेक होना ही नहीं चाहिए, कितनी भी माउंट पॉइंट हो जाए, यानी कितने बार भी मैं उसको माउंट करो तो वो चेक नहीं होना चाहिए फॉर द एरर। तो उसको मैंने क्या किया है, सेट टू 0। तो ट्यून टू FS -C एंड 0, दिस n वैल्यू विल बी सेट टू 0। इससे क्या हो रहा है, 0 सेट करने से वो कभी भी इसको चेक नहीं करेगा, बिकॉज आई सेट दिस वैल्यू टू 0। तो इसके बाद कितने बार भी वो माउंटिंग होंगे फिर भी वो आपका पार्टीशन चेक नहीं होगा कंसिस्टेंसी के लिए। ओके, देन इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज -M। तो व्हाट इज -M? सेट्स द रिजर्व ब्लॉक परसेंटेज टू n% ऑफ ऑल ब्लॉक्स। This is again an important one. So whenever we create a number of partitions, okay, and when we create a file system onto that, out of 100% storage space, 5% will be allocated or reserved for the what do you say, root operating system or the root, है ना। जैसे root होता है तो root के लिए क्या करता है, it will reserve the 5% of space out of that 100%। अगर सारे पार्टीशन के बारे में अगर आप सोचोगे, अगर आपके मशीन में 10 पार्टीशन है and on every partition if the 5% is reserved for root of your machine, then what happens, that particular space will be a wastage space, yes or no? आपने भी देखा होगा कि विंडोज में क्या होता है कि जब हम लोग पार्टीशन फॉर्मेटिंग करते हैं तो सारा स्पेस हमें नहीं मिलता है ना। अगर आपका पार्टीशन अगर 100 GB का होगा तो हमें 98 GB मिलेगा, उसमें से 2 GB आपको मिलता ही नहीं। मीन्स वी आर नॉट एबल टू यूज 100% स्पेस बिकॉज सम स्पेस आर रिजर्व फॉर द रूट यूजर और रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल सिस्टम। तो इसमें भी वही होता है, जब हम लोग फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो n%, I think that is the 5% space is reserved for a root, and that is a wastage, that is unused. The user will not use that particular, or the application will not use that particular 5% space for their purpose. तो आप वो कैसे जीरो कर सकते हो, by using this option, that is -M। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपने फाइल सिस्टम क्रिएट किया था तो उसने क्या कर दिया, 5% रिजर्व कर दिया। देन आपको लगा कि नहीं यार, ये इतने 100 पार्टीशन है मेरे इसके ऊपर। अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के बारे में सोचोगे और इतने सारे अगर पार्टीशन बनते हैं, है ना, created onto that particular storages for the cloud users, and if every partition is stored or reserve the 5% space for the root and which is not used at any time, then there is a wastage of resources. So how we can eliminate this? By setting this value to 0, -M and n is a percentage. तो आप decide कर सकते हो, either you want to keep it as a 1%, 2%, or either you can increase to 10%, or either you can set it to the 0%. Means if you don't want to reserve any space of that storage for the root, then what you do, you can set this value to 0. जैसे यहाँ पे दिया है tune to FS -C 0, तो mount count 0, -M that is reserved जो blocks है percentage, वो हमने यहाँ पे 0 किए हैं पार्टीशन में। तो ये क्या करेंगे, जब हम लोग तो 0 करेंगे तो now earlier that particular 5% space is reserved for that, now that is set to the 0, means now the applications or the user can make 100% utilization of that particular storage. Okay, so is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Reserve blocks to n. Okay, that is again -J option is important. So that is called as a journal. Creates a journal on this file system. So what is my journal of file system? Can anyone? Journalize, that is called as the journalized file system, and that feature is only available in ext4 file system, not in ext2 and ext3. So
That's why this is written, that is create a journal on this file system, that is convert ext2 to ext3. So what is my generalized file system? जैसे आपने देखा है कि when we use a storage, स्टोरेज में क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है? रीड एंड राइट एक्टिविटी. यस, क्या क्या एक्टिविटी होती है? रीड एंड राइट. मीन्स इफ एनीवन विल क्यूरी ए डेटा देन दैट विल बी द रीड एक्टिविटी. अगर आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो दैट इज द राइट एक्टिविटी. यस, these two activities are performed basically on storage. Yes or no? Yes, sir. Yeah, and both the activities will require access of that particular storage. तो पैरेलली अगर हम लोग दोनों एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? इट विल क्रिएट ए डिले फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑफ डेटा, क्योंकि राइटिंग भी आप कर रहे हो साथ में रीडिंग भी चल रहा है. तो नाउ कंसीडर राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ. यस, कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा? सर बोथ. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जनरलाइज फाइल सिस्टम का. जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, कॉलेज लाइब्रेरी में गए हो कभी? Yes, sir. यस और नो? लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक इशू होता है, बुक रिटर्न होता है. यस, बुक इशू होता है. बुक इशू हम लोग बोलेंगे कि रीडिंग ऑफ डेटा. ओके, और बुक रिटर्न कर रहे हो आप तो उसको बोलेंगे राइटिंग ऑफ डेटा. अब आप जब बुक इशू करने जा रहे हो तो एक ही आदमी क्या करता है? इशू भी करता है काउंटर पे और वो रिटर्न भी लेता है. हमारे पास रीड राइट हेड एक ही है और वो काउंटर पे पर्सन भी एक ही है. अब कंसिडर करो कि लोग बुक रिटर्न करने भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट जो है वो बुक लेने के लिए. अभी क्यू लगी है 10 लोगों की, 10 स्टूडेंट की, और उसमें से 5 स्टूडेंट जो है वो बुक रिटर्न करने आए हैं और 5 स्टूडेंट बुक इशू करने आए हैं. ओके, तो अगर कंसिडर करो कि पहले पर्सन ने बुक रिटर्न किया है तो दैट इज द राइट एक्टिविटी. अब वो जब बुक रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली दैट विल बी स्टोर्ड इनटू सम शेल्फ, है ना? लाइब्रेरी में शेल्फ होते हैं हर एक ब्रांच के, हर एक डिपार्टमेंट के. अगर वो लाइब्रेरियन जो पर्सन है वहां पे बैठा, वो अगर उठ के वो बुक उस पर्टिकुलर शेल्फ में डाले तो क्या होगा? जो इशू करने वाला बैठा वेट कर रहा है उसको ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. है ना? तो जैसे लाइब्रेरी का प्रोसेस कैसे होता है, तो वो उठ के नहीं जाता है हर बार. वो क्या करता है? रिटर्न बुक्स जो उसका स्टैक क्रिएट करते जाता है. इट विल टेक द रिटर्न बुक, मेक ए एंट्री इनटू द सिस्टम, क्योंकि स्टूडेंट का बुक रिटर्न आ गया, एंड इट विल मेक अ स्टैक ऑफ दैट. वो जाके शेल्फ में उस टाइम पे नहीं रखता है. वो क्या करता है? प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द स्टूडेंट हु इज हैविंग इशूइंग ऑफ बुक. तो इशू करते जाएगा, इशू करते जाएगा. बीच में रिटर्न वाला अगर कोई आता है तो रिटर्न बुक लेगा, अपने पास बाजू में रख देगा. ओके, टेबल के ऊपर. और जितने भी रिटर्न बुक्स आए वो टेबल पे स्टैक करके रख देगा और पहले इशू बुक्स वालों को इशू कर देगा. अब क्यों खत्म हो गई? सारे स्टूडेंट खत्म हो गए वहां पे 3 बजे के बाद, जैसे लाइब्रेरी क्लोज हो गई है. नाउ देयर इज नो इशू, देयर इज नो रीडिंग ऑफ डेटा. तो देन आफ्टर व्हाट इट डज, it will take all the books which is written by the student, keep it onto the trolley, and then after in a particular shelf he will keep all these books. So definitely it will save time. Yes or no? And it will improve the speed or processing speed. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. समझ में आया कंसेप्ट में? क्या क्या बताया मैंने एग्जांपल में? तो इस केस में इशू बुक इशू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. बुक शेल्फ में रखना इंपॉर्टेंट है क्या? अभी नहीं. आप लेके रख दो, उसका रिकॉर्ड रख दो, और जब वो लाइब्रेरी फ्री हो जाएगी और लाइब्रेरी का क्लोजिंग टाइमिंग हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? जितने भी बुक्स रिटर्न आए हैं वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर रैक में जाके रख देगा. वो मैकेनिकल का बुक मैकेनिकल के रैक में, कंप्यूटर का बुक कंप्यूटर के रैक में, सिविल वालों का बुक सिविल के रैक में, क्योंकि वो कोई भी स्टूडेंट कोई भी ब्रांच का रिटर्न कर सकता है. तो ये सेम कंसेप्ट क्या करता है? हार्ड डिस्क में भी फाइल सिस्टम में इंप्लीमेंट होता है. दैट इज कॉल्ड द जर्नलाइज्ड फाइल सिस्टम. तो इस केस में क्या करता है? व्हाटएवर डेटा ही वांट टू राइट, क्योंकि रीड राइट हेड एक ही है,
तो जो writing activity है, he will postpone that writing activity until your storage is free. मीन्स स्टोरेज जब तक उसका रीडिंग एक्टिविटी खत्म नहीं होता तब तक क्या करता है वो, इट विल ओनली मेंटेन द लॉग ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, he will not write that information, that will be stored into the buffer. First he will give the priority to that what is the reading process and writing process. Whenever he will free, then he will do that activity, just like a library. So that particular feature is available in ext4 file system. Okay, so by using this minus j option we can do that. Minus capital option is used to change the label. जैसे हम लोग हार्ड डिस्क को लेबल देते हैं, आपको पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि नहीं? We can give the nomenclature, that is C drive, Windows operating system, and D drive, D colon, that is project. Means we can identify what is the purpose of that particular partition. So if you want this particular partition is reserved for the DNS server, then you can change the label as a DNS server by using this option. So minus capital L, and you can specify the label name. So that will assign a label to a particular partition. So this is a simple utility that is again for changing the properties of your file system later on to tune to FS, and these are the options. Okay. The next step is mounting a partition. अब हमने पहला स्टेप क्या किया था? We have created a partition using fdisk utility. In second step, what we have done? We have created a file system onto the partition by using mkfs command. Now that partition is ready, but that particular partition is not available for use. Ready तो है, but वो use नहीं कर सकते हम लोग. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to go to the next step, that is mounting a partition. Okay, you have to mount a partition. What is mounting process? Mounting means in partition, when we create a partition that is not directly accessible to a user. Okay, partition is created, we can create the file system, उसको SDB file, but SDB file पे directly data नहीं जाता है. जैसे आपने फाइल सिस्टम हमने पढ़ी है लिनक्स में, तो फाइल सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, that is through a file system and the directories. We have a different directories through which we can access the data. Yes or no? For everything we have a directory under the file system. Slash के अंदर सारे फाइल सिस्टम है. We have a slash beans, we have a slash etcs, we have a slash dev. Okay, and if some partitions are there, that is under the slash mnt directory. ओके, तो ये डायरेक्ट जो पार्टीशंस होते हैं लिनक्स में वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते, जस्ट लाइक विंडोज की. विंडोज में आपने फॉर्मेट कर दिया, तो नाउ दैट पार्टीशन इज रेडी टू यूज, यू कैन पुट एनी डेटा ऑन टू दैट. नो, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव टू फॉलो वन मोर स्टेप फॉर दैट, दैट इज यू हैव टू क्रिएट अ माउंटिंग लोकेशन. तो माउंटिंग लोकेशन कैन बी एनी लोकेशन. आप आपका डायरेक्टरी बनाओ, तो माउंटिंग करने के लिए आपको दो चीजें लगती है. एक तो होता है पार्टीशन जो आपने क्रिएट किया है, दूसरा आपको उसको माउंट कहाँ पे करना है. जैसे आप शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हो समझो, तो आप माउंट कहाँ पे कर रहे हो मीन्स यू हैव टू क्रिएट ए डायरेक्टरी. क्योंकि हम लोग डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं लिनक्स में? डायरेक्टरी में, है ना. हमारा लोकेशन स्टोर एरिया ने क्या है? वी डोंट हैव अ सी ड्राइव, डी ड्राइव. सो व्हाट इज द लोकेशन फॉर स्टोरिंग द डेटा इन लिनक्स? दैट इज अ डायरेक्टरी. सो नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डायरेक्टरी. जैसे आप डीएनएस के लिए पार्टीशन बना रहे हो, तो आपका माउंटिंग पॉइंट लोकेशन क्या रहेगा? यू कैन क्रिएट ए डायरेक्टरी डायरेक्टली विद इन द फाइल सिस्टम और अंडर दिस एमएनटी डायरेक्टरी. तो एक एमएनटी डायरेक्टरी आता है फाइल सिस्टम में. तो ये कैसे है, ये आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से. दिस इज नॉट मैंडेटरी ऑलवेज, यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी विद इन दिस एमएनटी. यू कैन डायरेक्टली कोई भी डायरेक्टरी में आप बना सकते हो, आपकी डायरेक्टरी में बना सकते हो, डायरेक्टली फाइल सिस्टम में बना सकते हो. बट उससे हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन से डायरेक्टरीज हमारी है या कौन सी माउंटिंग पॉइंट है. तो जनरली फॉर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन व्हाट वी डू, वी कैन क्रिएट अ माउंटिंग लोकेशन इन द एमएनटी डायरेक्टरी. ओके, तो फर्स्ट यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी विथ एनी नेम. तो जस्ट लाइक आई हैव गिवन द डेटा, so you can say that is DNS server can be a directory name. Okay, so after creating that particular directory, what is the next step? You have to use a mount command. So mount command will mount that particular partition to a directory. So it will link that particular partition with the
this particular directory. So use mount command to mount a partition to a created directory under /mnt. तो कमांड क्या यूज करना है आपको? माउंट द पार्टीशन नेम, क्या माउंट करना है और कहां पे करना है, ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट. क्या मीन्स दैट इज अ पार्टीशन नेम और कहां पे दैट इज अ डायरेक्टरी नेम. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. So two arguments are required for this mount command. Mount command है जो माउंटिंग के लिए यूज होता है. पहला आर्ग्यूमेंट होता है जो आपने पार्टीशन बनाया जिसके ऊपर आपने फाइल सिस्टम बनाई थी वो स्पेस, और दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज अ डायरेक्टरी. अब ये डायरेक्टरी आपकी पहले से बनी है तो आपको mkdir हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम इफ यू आर क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी देन यू कैन गो फॉर द mkdir. नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका डायरेक्टरी यहाँ पे मिलेगा और वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो सिंपल कमांड अगेन दैट इज माउंट dv sdb6 एंड देन द डायरेक्टरी नेम. तो नाउ बाय यूजिंग, जब आप यहाँ पे डेटा फोल्डर में जब कोई डेटा स्टोर करोगे तो उसका मीनिंग है दैट डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन टू द sdb6, है ना. ये इसको बोलते हैं सीधे हाथ खाना नहीं, आड़े हाथ खाना, है ना, उल्टे हाथ से खाना. यानी डायरेक्टली sdb6 पे डेटा नहीं जाना चाहिए. कहाँ पे डेटा जाएगा? वो डेटा में, डेटा फोल्डर में जाएगा और डेटा फोल्डर से वो कहाँ पे स्टोर होगा? आपके sdb6 में. सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस दैट इज अगेन गुड. ओके, कि डायरेक्ट किसी को भी इसका एक्सेस नहीं मिलेगा. तो आप जब भी आपको रिक्वायर्ड है आप माउंट करो उसको, और जब भी आपको नहीं रिक्वायर्ड है उसको यू माउंट कमांड आता है, अनमाउंट. तो जैसे आपका डेटा आपने उसमें स्टोर कर दिया, आपका काम हो गया है, तो आप क्या करो? यू माउंट कमांड से उसको अनमाउंट कर दो. ओके, तो वो पर्टिकुलर जो लिंक है एस्टेब्लिश हुई दोनों में. तो जैसे माउंट कमांड हम लोग बोलेंगे कि इट विल एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन दिस पार्टीशन एंड द फोल्डर. और यू माउंट कमांड क्या करेगा? यू माउंट कमांड विल रिलीज द लिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी टू द पार्टीशन. ओके, तो ये आप मैन्युअली करोगे यूजिंग माउंट कमांड. ऑटोमेटिक भी होता है, वो कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताता हूँ. So this is called as the manual mounting process. Is it clear how manually we can mount a partition at the particular directory? Yes? Yes, sir. Yeah. And how we can cross check this particular either that is mounted or not. So you have a df command. Okay, dmesg command. It will show the log again. आखिरी के लाइंस देखो उसमें माउंटिंग हुआ कि नहीं हो, वहां पे मैसेज मिलेगा. डीएफ कमांड से भी आप देख सकते हो, इट विल लिस्ट ऑल द पार्टीशन एंड देयर माउंटिंग लोकेशन, और इवन यू कैन यूज अ माउंट कमांड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट टू चेक आइदर a mounted location with the partition. So these are the three commands which is used to cross check either that particular partition is mounted into the particular directory or not, and that is activated or not. Okay, so this is called as the manual mounting. This particular is called as a manual mounting. Okay, तो unmount command है जो हमने डिस्कस किया है, that is umount and you can specify a directory name. Okay, तो for unmounting तो यहाँ पे partition name लिखने की जरूरत नहीं है. What you have to specify as an argument only a directory where you are mounted a partition. So umount stand for unmount, so it will release the link between the data directory and the partition. What is the use of this lsof command? Basically, when we mount that particular partition, and we can create a different files. Okay, and some, maybe you have opened some file, means xyz.doc, abc.doc, two files are open from that particular location. And if you try to use this umount command, आपका ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये कमांड एग्जीक्यूट? कोई बता सकता है? Sir, please repeat question. We have mounted that particular partition. Okay, ये कमांड से हमने क्या किया? माउंट किया. अब डेटा में मैंने कुछ दो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जैसे वी एडिटर से मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं,
तो दो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए, एक xyz.txt बनाया, एक abc.txt बनाया, और दोनों डॉक्यूमेंट मेरे ओपन है वी एडिटर में। ओके, और मैं उसके बाद umount कमांड अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अनमाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि दोनों जो लिंक्स है वो ओपन है। जब भी आप umount कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें जो भी फाइल्स रहेगा उसमें कोई भी लिंक्स एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. लिंक ओपन नहीं होनी चाहिए, मीन्स ऑल द लिंक्स आर क्लोज, मीन्स उस पर्टिकुलर फाइल से, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटाबेस लिंक एक्टिवेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्टिवेटेड है तो आपका umount कमांड वर्क नहीं करेगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपको थोड़ा कैसे पता है कि यार ये लिंक कौन से ओपन है? तो उसके लिए कमांड आता है lsof कमांड। टू चेक वेदर एनी लिंक्स आर ओपन यूज lsof, and that is not a 6, that is my mistake, that is written 6. So lsof and the mounting point, this is called the mounting point. Okay, so this is a mounting point you have to specify, so it will show that is which links are open, कौन से links उस particular location से opened है वो बताएगा। Now you can manually close all this link and then again you can go for the umount command और unmount command, है ना? नहीं तो आप umount करते रहोगे और वो close नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Due to this reason, means if any link is opened out of that particular mount point, इसको बोला जाता है mount point, है ना? जो हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? Mount point. माउंट पॉइंट। और जो माउंट काउंट हमने देखा था ट्यून टू एफएस में, ये वाली वैल्यू दैट इज -CN, ये समझ में आया अभी क्या है? जितने बार अपन हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे दैट इज माउंट डिवाइस नेम और सॉरी पार्टीशन नेम एंड द माउंट पॉइंट। जैसे आप हर बार करोगे तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, जैसे आप सर्वर आज शुरू किया तो माउंटिंग करेगा, है ना? आज एक काउंट हो गया, दूसरे दिन शुरू करोगे दूसरा काउंट होगा, तीसरी बार करोगे तीसरा काउंट होगा। तो ऐसे that is called as a count, that is called as a mount count, and that value is this particular value, that is tune to fs में -C जो होता है वो हम लोग 0 करते हैं, तो हमें नहीं चेक करना। तो जैसे ये 100 बार अगर कमांड एग्जीक्यूट होता है माउंट वाला हमारे पार्टीशन के लिए, तो 100 के बाद क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम को चेक करेगा SDB6 के ऊपर। ओके, और मुझे वो नहीं चाहिए तो आई विल सेट इट टू द 0 यूजिंग tune2fs utility. Is it clear what is this umount command and lsof? Sir, Simple command say, yeah. Sir, if we want to forcefully unmount, then is there any command or we cannot do that? नहीं, आपको लिंक क्लोज करने पड़ेंगे वो। Okay. एंड फॉर ऑटो माउंटिंग, है ना? ये तो हमने देखा मैन्युअली हो गया, हम लोग रोज थोड़ी ना वो एक्टिविटी करेंगे। वी कैन एग्जीक्यूट दैट माउंट कमांड एंड द पार्टीशन नेम एंड द व्हाट इज से माउंट पॉइंट। नो, आई वांट टू ऑटोमेट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो जैसे ही मेरा लिनक्स सिस्टम बूट होगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्टीशन क्या होना चाहिए? उस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो माउंटिंग। And for that auto mounting a partition, you have to edit this particular file, that is fstab file, that is called the file system table, which is available in etc directory. Okay, so what you can do, you can edit this particular file via editor से आप open करो उस particular file को। Okay, and after opening this file, what entry you have to make into that? You have to make this entry, that is UUID. UUID, okay, this is universal unique ID which is assigned for that particular partition. जब भी हम लोग partition format करते हैं तो उसको एक ID assign किया जाता है, that is called the UUID, and that UUID is universally unique ID. UUID stand for universally unique ID. कैसे पता करते हैं मैं बताता हूँ आपको कमांड। ये वे है, तो ये आपको UUID बताओ, पहला जो कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा? The UUID of that particular partition,
दूसरे कॉलम में आपको क्या स्पेसिफाई करना है, द माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा माउंट पॉइंट क्या है अभी, दैट इज mnt/data। यहाँ पे माउंट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स आपको स्पेसिफाई करना है, दैट इज अ UUID, देन माउंट पॉइंट, देन थर्ड कॉलम इज अ फाइल सिस्टम। जो भी फाइल सिस्टम उस पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर है, अगर वो पार्टीशन आपने ext4 के साथ किया है तो ext4 you have to write down. If that partition is formatted using XFS, then you have to write down the XFS. और आखिरी के जो ये वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, वो एज इट इज लिखना है आपको, डिफॉल्ट 0 स्पेस 0। ये 3 वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला वैल्यू दैट इज अ UUID, सेकंड इज माउंट पॉइंट एंड थर्ड वन इज अ फाइल सिस्टम। रिमेनिंग थिंग्स आर कॉमन फॉर एवरी पार्टीशन, यू कैन मेक एंट्री। तो जैसे ये पहला पार्टीशन है, एक रो में आप एंट्री करोगे, दूसरा पार्टीशन है, दूसरे रो में एंट्री करोगे। अगर आपको ये UUID नहीं पता है तो एक और वे है, आई विल शो दैट। Okay, so these are one way to add entry into that particular file system. या फिर दूसरा वे क्या है, if you don't remember or if you are not able to get this UUID, simply you can specify the device name, that is /dv/sdv6 space, then you can specify the mount location, that is /mnt/data, then whatever file system you have, that is ext, ext4, then you have to write down defaults 0 space 0। इस तरह आपको क्या करना है, एंट्री करना है इस पर्टिकुलर FSTF फाइल में। इज इट क्लियर? Yes, ये sir. 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हो, इफ यू डोंट नो हाउ वी कैन द UUID ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, then you can specify the partition name directly, then you can specify a mount location, the file system, and then default 0 and 0। बस इस टाइप में ये फाइल एंट्री कर दो इस तरह से। दैट पर्टिकुलर FSTF फाइल सेव करो, उसको क्लोज करो, और नेक्स्ट टाइम जब आप ऑपरेटिंग को बूट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्टीशन है SDB6 will be automatically mounted into this particular mount point। आपको फिर ये मैनुअल माउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिकली ये माउंट होगा क्योंकि ऑटो जो FSTF फाइल अपने आप एग्जीक्यूट कर होता है, और इसमें जो एंट्री आप करोगे वो ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू वांट टू डू माउंटिंग ऑफ partition into a particular mount point, then you can make an entry। और एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, by using this particular ways, that is first way is partition name, or second one is that is yeah Sir, but we have to reboot the computer after creating the. yes Sir, Yeah. but we need to reboot the computer now. If mounting will be automatically. Means after creation, then we have to reboot our after creation we have to edit the FSTF file, and then we have to reboot no our need to computer. boot. We have a command that is mount -a. We have to mount -a command, which will means re-execute this particular FSTF file। Okay. either you can reboot, तो वो एक्टिवेट होगा, या फिर माउंट कमांड आता है जिससे क्या होता है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी हमने चेंजेस किए इसमें, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी एक्टिवेटेड, FSTF फाइल फिर से एग्जीक्यूट हो जाती है इंटरनली। आप सिस्टम रिबूट करने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. Okay, and if you want to know the UUID, that BLID is one command in Linux that is called the block ID। So when we execute the block ID onto the terminal,
So it will list all the partition and their UUID on the screen. Okay, मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ तक समझ में है आपको? Yes, sir. ये एक पार्ट समझ में है आपको? पार्टीशंस कैसे बनाते हैं, फाइल सिस्टम Yes, sir. कैसे बनाते हैं, माउंटिंग कैसे करते हैं. This is one part of storage management, and second part is that is logical volume management. Second part is logical volume. तो मैं आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, ये वाले जो है अभी fd office. Is it yes or no? Yes, sir. या फटाफट मैं आपको बताता हूँ. समझ में आया ना? कंसेप्ट समझना जरूरी, इसका फ्लो एंड कंसेप्ट. ओके, Yes, sir. वर्चुअल बॉक्स में हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं आपको सब पता है? हैव यू नो द प्रोसेस? हाँ सर, वो उसका क्रिएशन करना पड़ता है. हाँ, क्योंकि आप जो एसडीए जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी हार्ड डिस्क, एंड ये से स्टोरेज मैनेजमेंट के आप उसके ऊपर नहीं करोगे. सो यू हैव टू ऐड वन मोर हार्ड डिस्क, एडिशनल हार्ड डिस्क आप उसमें ऐड करो. उसको ऐड कर लिए मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल बॉक्स में कैसे करते हैं. सर Yeah. बट वो जब अपन इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तभी उसको बताना पड़ता है ना कि विल वी बी एडिंग अनदर. नहीं, एडिशनली मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं एडिशनली कैसे करते हैं. वंस यू क्रिएट दैट, मैं सेकंड हार्ड डिस्क इसमें, थर्ड हार्ड डिस्क ऐड कर सकता हूँ इसमें. वही प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने एक मशीन बना दिया, जैसे मैंने Red Hat 8 डाला ना, तो प्राइमरी मेरा हार्ड डिस्क कौन सा था, यहाँ पे देखो ये स्टोरेजेस दिख रहे हैं ना, तो दैट इज Red Hat 8 इज माय इनिशियल हार्ड डिस्क ऑफ 19 GB. ये मैंने 2 एडिशनली ऐड किए हैं उसके बाद, दैट इज SDB एंड SDC. वो कैसे ऐड करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से दो. सेटिंग में जाओ. ओके, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऐड करनी है. आपकी प्राइमरी हार्ड डिस्क वहां पे होता है. आपको लेटर ऑन अगर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ऐड करना है तो सिंपल प्रोसेस है. ओपन दिस सेटिंग. इज इट विजिबल? यस सर, इट इज विजिबल. या स्टोरेज पे क्लिक करो. स्टोरेज में यहाँ पे कंट्रोलर साटा जो होता है वो यूज करो. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा मशीन रन हो रहा है, तो ऑलरेडी तो इसमें ऐड नहीं करने देगा रनिंग सिस्टम. आप अगर मैं ये बंद करता हूँ तो यहाँ से ये जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे मैंने देखो ये 3 हार्ड डिस्क ऐड किए. ओके, और आपको 1 मिनट दिखाता हूँ. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लस का, जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्लस हार्ड डिस्क. तो ऐड हार्ड डिस्क यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐड हार्ड डिस्क करके आ रहा है ऑप्शन. तो बाई क्लिकिंग ऑन टू दिस वी कैन ऐड द हार्ड डिस्क इनटू दैट सिस्टम. मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले पावर ऑफ ही कर देता हूँ मशीन को. ओके, आई स्विच ऑफ दिस पर्टिकुलर Red Hat मशीन. ओके, आप देखो मैंने जैसे ही मशीन बंद कर दिया तो एक्टिवेट हो गया. यस, तो ये आपको प्रोसेस कब करना है? बिफोर स्टार्टिंग योर Red Hat. तो ये देखो मैंने यहाँ पे कहाँ पे गया, सेटिंग में, सेटिंग से स्टोरेज में, स्टोरेज से कंट्रोलर साटा, कंट्रोलर आईडी नहीं जाना है, कंट्रोलर साटा. और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, पहला जो ऑप्टिकल ड्राइव है, सेकंड है हार्ड डिस्क. क्लिक ऑन टू द हार्ड डिस्क. ओके, वो बोलेगा कि ऐड और क्रिएट. सो यू कैन से क्रिएट what VDI, that is virtual disk image, I have to create dynamically allocated. What will be the size I required? Okay, I will create a hard disk of 10 GB. Okay, तो ऑलरेडी मेरे इसमें 3 हार्ड डिस्क एडेड है. 10 GB का एक मैं पार्टीशन बनाता हूँ, तो ये आएगा SDC. अब जैसे आप हार्ड डिस्क ऐड करोगे, यहाँ पे देखो उसने किया है Red Hat 8_3 VDI of 10 GB. ओके, और 10 GB. अभी नॉट अटैच बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के बाद
जैसे यहाँ पे आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा, है ना, 3, तो ये जब तक आप ये चूज नहीं करोगे तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। तो यू कैन सिलेक्ट नॉट अटैच है, सिलेक्ट करो उसको एंड यू कैन चूज इट। जैसे ही चूज किया मैंने, देखो यहाँ पे आ गया 8_3.vdi। यस, एडेड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरी प्राइमरी हार्ड डिस्क है, 2 हार्ड डिस्क मैंने की थी, तो ये हो गया एस डी ए, एस डी बी, एस डी सी, एस डी ई। फिर से मैं और एक ऐड करूंगा, दैट इज ऐड, नॉट ऐड, दैट इज क्रिएट VDI एंड डायनामिकली अलोकेटेड 8 GB साइज। फिर से दैट इज नॉट अटैच, 4th, एंड दैट इज चूज, दैट इज एडेड। तो 1 2 3 4 कितने, 4 5 हार्ड डिस्क हो गए। इसको मैं रिमूव करूंगा तो ये एस डी ए बी। तो यहाँ पे कितने हार्ड डिस्क हमारे मशीन में आने चाहिए अभी, एस डी डी तक, ABCD। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके। So now you can see that I have 4 hard disks connected to my machine. That is, first is my Red Hat VDI normal, जो एक प्राइमरी हार्ड डिस्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। 3 हार्ड डिस्क मैंने इस तरह के ऐड किए हैं, फर्स्ट ऑफ 20 GB, सेकंड इज ऑफ 8 GB एंड थर्ड इज ऑफ 10 GB। नाउ आई कैन स्टार्ट दिस मशीन। You can take a break of 5 minutes until till the machine will boot, and then we can see the command. Okay. If you have any doubts, you can ask. समझ में आ रहा है आपको सारा अच्छे से? हाँ सर, समझ में आ रहा है सब। समझ में आ रहा है, ओके। It will take a more time. Okay, so we can open the terminal now.
And you can remember that all this command, that is storage management, or commands are executed from the root login. If you see this, if you can go for the option, so permission is denied, है ना, fdisk -l I have done. So it gives a message that is permission denied, but he has listed all the partitions which is available, cannot open because permission is denied. So first of all, you have to log in as a super user. Okay, and then you can check what partitions are available, fdisk -l. So it can show all the partitions which are created, the partitions which are available. It will list all this. That is, first partition is SDA. We is having a 2 partition, SDA 1, 2. Second partition is SDB, which I have created, and I have created 5 partitions onto that. Recently, we have added this particular SDD and SDC of 10 GB. And we added this 10 GB partition right now in virtual Yes, box. sir. Yes or no? Yes, है ना? sir. और ये 8 GB का पहले से था, तो 4 पार्टीशन यहाँ पे दिख रहे हैं. ये एक वन वे है, आप देख सकते हो कि कौन से स्टोरेजेस है, या फिर नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है, क्या कर देंगे हम लोग, ls/dv/sd star. So you can see that is we have a SDA partition. SDA partition में 2 partition से सब partition, SDA2 okay and 1, and then SDB में कुछ partition है, और SDC और SDD में अभी भी कुछ भी partition नहीं है. तो अब हम लोग partitions बनाएंगे. कौन से partition को लेंगे हम लोग, SDC, yes. जैसे disk आपको स्पेसिफिक अगर पार्टीशन का देखना है तो -l/dv/sda. SDA पे कितने पार्टीशन अगर आपको देखना है तो इट विल शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन. दैट इज द साइज ऑफ दिस पार्टीशन इज 19 GB. इसमें GB नहीं होता है, गीब होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? सर गीगाबाइट. हम लोग GB जो बोलते हैं ना, गीगाबाइट. GB जो होता है 1024 का होता है, या है ना. 1 GB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, बट व्हेन GIB इज नथिंग बट 1000 बाइट्स. ये दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे जो GIB लिखा है ना, तो दैट इज नॉट अ GB. तो GB का जो होता है 1 GB इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स. ये क्या करता है, जब ये पार्टीशंस करता है तो इट विल कंसीडर 1000 बाइट्स एट द GIB. ओके, तो यहाँ पे ये साइज देखो, डिस्क लेबल डॉस, यहाँ पे लेबल डॉस दिया है उन्होंने, बाय डिफॉल्ट किया है. दैट पर्टिकुलर partition SDA having a 2 partition, that is, one is Linux partition and second is Linux LVM partition, that is logical volume management partition, and first partition is a bootable partition. If you can see on B, I have created some partitions over that. I will clear the screen so that can be more visible. So of 20 GB, out of 20 GB, I have created 1 partition as a Linux partition. Then I have created SDB2 as an extended partition, and within that extended partition, I have created 3 logical partition. So first partition is defined as a swap partition. 6th partition, that is SDB6, is defined as a Linux LVM partition, and SDB7 is defined as a NTFS partition. तो जैसे मैंने कहा था कि we can define the NTFS partitions also. तो उसमें वो जो कमांड रहेगा mkfs.ntfs रहता है, xfs jfs की जगह. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग fdisk कमांड. ये मैंने जस्ट आपको दिखाया कि क्या पार्टीशन बने हैं. नाउ वी कैन गो फॉर, अब आपको पार्टीशन बनाना तो यहाँ पे आप सी करो, कोई भी पार्टीशंस नहीं है यहाँ पे. यस, SDC में कुछ पार्टीशंस है क्या अभी? नो सर. No. So not any partition is listed here. So we want to create it. So -l हम लोग हटा देंगे, simply as disk and the partition name. Then you can see menu is displayed here. That is command.
if you press the M button, I have pressed M. So when I press M button, it will show the list जो हमने देखे थे options. काफी सारे हैं उसके अलावा, but हमारे इतने काम के उतने ही देखो. That is toggle a bootable flag, then delete a partition, then N add a new partition, print a partition table, then T change a partition type, that is called the toggling. That is M for printing this menu again. Then extra functionality, save and exit. पहले कैसे आता था, पहले जो हमारे स्नैपशॉट में डाला है उस तरह से मेनू आता था. Now that is segregated according to this. Save and exit, W and Q for saving and exiting. W से वो write करेगा changes और बाहर आएगा. Q से without saving it will come out of that file. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि we can create a new partition. अभी हम लोग P अगर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी partition नहीं है. Okay, so we are given the P, so no partitions are there. तो P क्या करता है, it will print the partition table, है ना. P से क्या होता है, print the partition table. मगर अभी तक कोई भी partition नहीं बना है तो वो कुछ भी नहीं करेगा. Now we can go for the N, new. We want to add a new partition. तो N मैंने प्रेस किया. Now he is asking either that is the primary partition or the extended partition. पहले की इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, अभी काफी वो मॉडिफाई कर दिया, एडवांस दे दिया इन्होंने. कंटेनर फॉर लॉजिकल पार्टीशन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज शोइंग. So it will only show the 4 free partition. Now how many primary partitions are free to create? That is 4. So we will create one partition as a primary partition, that is P. Okay, so partition number तो 1 to 4 is available. तो हम लोग यहाँ पे by default 1 है, तो यहाँ पे हम लोग enter प्रेस करेंगे. आप default ही करो, no need to specify partition number, automatically जो भी है next वाला वो लेगा. So I will press the enter button. So it will take a partition 1 as a partition number. Then it will ask कि कहाँ से शुरू करना है ना. तो default is 2048. Okay, तो उसने कुछ bytes पहले छोड़ दिए हैं reserved. जैसे block जो मैंने कहा था कि some partitions are reserved for the root user. तो उसने कुछ percentage उसमें से reserved रखा है, and that is started from 2048. So we will start with this. Okay, and now what will be the size which you want to specify that particular partition? मुझे ये partition 1 GB का बनाना है. प्राइमरी पार्टीशन जो है वो 1 GB का. तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दिया है साइजेस के ऑप्शंस क्या है. आप किलोबाइट्स में दे सकते हो, मेगाबाइट्स में भी दे सकते हो, गीगाबाइट्स में दे सकते हो, टेराबाइट्स में दे सकते हो, या पेटाबाइट्स में दे सकते हो, है ना. ये सारे मेमोरी यूनिट्स है. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, Yes, sir. है ना. किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स. तो मैं ये पार्टीशन कितने साइज का चाहिए मुझे, 2 GB का. तो मैं करूंगा प्लस, एक काम करते हैं हम लोग 1 GB का लेते हैं इसको, 1 कैपिटल G, एंड आई विल प्रेस द एंटर बटन. तो व्हाट इज रिटन हियर, क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 1 GB. नाउ यू कैन प्रेस द P, print the partition table. So you can see the first partition is created. Yes, that is SDC is created and is a Linux primary partition. Okay, then again I will create one more partition, new. 3 free partition is available as a primary partition. तो क्या करेंगे, अभी प्राइमरी बनाएंगे कि एक्सटेंडेड बनाएंगे? Your choice. क्या बनाएंगे हम लोग? So we can see one of extended. Extended. Yeah. तो we will do one more primary. Okay, तो we can go for the second. तो मैंने फिर से प्राइमरी दिया. तो प्राइमरी में उसने पूछा डिफॉल्ट इज 2, क्योंकि पहला बना है. तो यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट देखो क्या ले लिया, वैल्यू 2 लिया है. तो यू कैन प्रेस द एंटर बटन. सेक्टर वो अपने आप लेगा स्टार्टिंग, क्योंकि ये पहला जो पार्टीशन जो था बना वो कहाँ पे एंड हुआ है, 2099.119. ओके, तो ये कहाँ से शुरू हो गया, 119 के बाद 200 से. तो यू कैन प्रेस द एंटर बटन. और ये दूसरा पार्टीशन मैं बनाना चाहता हूँ 500 M, या आई विल गो फॉर ओके 500 M, दैट इज MB का, सॉरी आउट ऑफ रेंज.
one more step, n downward. Okay, he has created all this partition by default. उसने आखिरी का ले लिया, इंटरप्रेस हो गया फिर. We can see the partition. Okay, he has taken all the 7 GB, so no problem. What is the option which is available for us ऐसे केस में? D, delete the partition. कौन सा partition delete करना है? दूसरा वाला, क्योंकि वो हमारे गलती से 7 GB का बन गया है, उसको डिलीट कर दो. तो partition 2 has been deleted. Now see P, the partition is deleted now. You can create a new partition. Okay, new partition of primary partition. Enter and +1G. हमने प्लस नहीं लिखा था इसलिए उसने नहीं लिया था वो. That is 1 GB का एक partition बना है. You can see that 2 primary partitions are now available. Now we can create extended partition. n के बाद वो पूछेगा 2 प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड, तो वी कैन टाइप द एक्सटेंडेड पार्टीशन E. ओके, पार्टीशन नंबर 3, क्योंकि वो प्राइमरी से ही लेता है तो 3 4 लेगा वो पार्टीशन नंबर एक्सटेंडेड, क्योंकि दैट इज अ कंटेनर. तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट थर्ड पार्टीशन इज डिफाइंड एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन. फर्स्ट सेक्टर, यस. लास्ट सेक्टर, जितनी भी स्पेस बची होगी, अभी 6 GB बचा है, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे 6 GB. We can simply press the enter button, क्योंकि मुझे सारी जो बची स्पेस है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन को देना है. इज इट क्लियर? समझ में आई ये? Yes, sir. या तो अभी बची जो स्पेस थी वो एक्सटेंडेड पार्टीशन में आ गई है. आप देखो अभी 3 पार्टीशंस यहाँ पे बने हैं. दैट इज 2 पार्टीशन इज ऑफ लिनक्स पार्टीशन ऑफ 1 GB साइज, एंड थर्ड पार्टीशन दैट इज SDC इज ऑफ 6 GB, एंड दैट इज एक्सटेंडेड पार्टीशन. अब फिर से अभी मुझे नए पार्टीशन बनाना है. ओके, तो न्यू. अभी इसमें देखो आप, ऑल स्पेस फॉर प्राइमरी पार्टीशन इज इन यूज. अभी कोई स्पेस बची है कि 8 GB का मेरा बना है और 8 GB सारे अलोकेटेड है, तो इसमें प्राइमरी या एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं बनेगा. वो क्या बोल रहा है, नाउ यू कैन ओनली एबल टू क्रिएट अ लॉजिकल पार्टीशन. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट पार्टीशन? एडिंग लॉजिकल पार्टीशन. ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक स्वैप पार्टीशन के लिए डिफाइन कर देते हैं. तो एंटर करो. एक 1 GB का हम लोग स्वैप पार्टीशन बनाएंगे. 1G. ओके, अब आप प्रिंट करो. अब ये SDC 5 बन गया है, बट इसका टाइप क्या है अभी भी? लिनक्स. हम लोग और एक पार्टीशन ऐड कर देते हैं, मैं आपको टॉगलिंग बाद में बताता हूँ. पार्टीशन 6 इज एडेड, दैट इज अ लॉजिकल पार्टीशन. इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कोई भी एक पार्टीशन. ओके, ऑफ 2 GB. ओके, 2 GB का एक और पार्टीशन बन गया हमारा. यू कैन चेक इट आउट. अगेन वन मोर पार्टीशन इज एडेड, दैट इज SDC 6. अगेन वी कैन ऐड वन मोर पार्टीशन, क्योंकि हमारी कुछ और स्पेस बची है. पार्टीशन 7. जो भी 4 GB बचा होगा उसमें कितने GB हमने दिया था? 6 GB का एक्सटेंडेड पार्टीशन था, उसमें से कितने GB चले गए हैं? 2 GB 3 GB चले गए. अभी 3 GB बचे हैं. तो लास्ट सेक्टर, एंटर. तो 3 GB जितना भी स्पेस बचा था वो तीसरे पार्टीशन को चले गए. अब देखो आप यहाँ पे कितने पार्टीशन बन गए हमारे? 7. SDC 1 is a primary partition 1. SDC 2 is a primary partition, second primary partition. SDC C is a extended partition, and within that extended partition we have created a 3 logical partition, that is 5, 6 and 7. यहां तक समझ में आ गया अभी? यस. हाँ, Yes, sir. अभी यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे तो यार ये लिनक्स ही बता रहा है, इसका टाइप जो है लिनक्स ही है. मुझे इसको चेंज करना है. मैं तो बोल रहा हूँ कि SDC 5 जो है मुझे स्वैप पार्टीशन के लिए डिफाइन करना है. ओके, SDC 6 कैन बी यूज फॉर द व्हाट इज NTFS फाइल सिस्टम, एंड SDC 7 कैन बी यूज फॉर द LVM, that is logical volume management. So how I can do that? I can use a T option here. Now that is called as a toggling ID. T stand for toggling a partition type. तो T प्रेस करो. T प्रेस करने के बाद आपको किसका पार्टीशन टाइप चेंज करना है वो यहाँ पे आपको पार्टीशन नंबर पूछेगा. तो मुझे किसका चेंज करना है? 5th का. Now I want to change this particular partition, that is from Linux to swap partition.
ओके, तो आई विल एंटर द 5th पार्टीशन नंबर। अब वो पूछेगा कि यार कोड क्या, अब आपको तो कोड पता नहीं कि उसका कोड क्या है स्वैप पार्टीशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैपिटल L डिफाइन करो तो लिस्ट ऑल द कोड्स, तो यू कैन व्हेन वी एंटर L तो इट विल शो ऑल दिस कोड्स फॉर दिस पार्टीशन। और इतने टाइप के पार्टीशंस आप लिनक्स में बना सकते हो, है ना, कितने सारे देखो, है ना। इट विल ऑलमोस्ट कवर ऑल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू कैन सी, है ना। दैट इज विंडोज 95, FAT32, ओके, OS2, देन यू कैन सी नॉवेल नेटवेयर, आपने अगर नाम सुना होगा तो नॉवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, बोलना। ओल्ड मिनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, उसका भी है, आप बना सकते हो। BSD ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसका भी आप पार्टीशन यहाँ पे बना सकते हो। अमीबिया एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी आप पार्टीशन बना सकते हो, है ना। इवन NTFS पार्टीशन इज अवेलेबल, ओके। तो हमें क्या चाहिए, स्वैप पार्टीशन चाहिए। तो स्वैप पार्टीशन का कोड क्या है यहाँ पे, 82। इस लिस्ट में से देखो ये नंबर जो है किसका है, ये लिनक्स स्वैप पार्टीशन। तो हमें कौन सा पार्टीशन बनाना है अभी, स्वैप पार्टीशन। सो वी कैन स्पेसिफाई 82, ओके, 82। नाउ चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स स्वैप। नाउ यू कैन सी, नाउ दैट इज चेंज टू लिनक्स स्वैप। किया उसने। अब हम लोग इसका टॉगलिंग करेंगे पार्टीशन नंबर 6 का, वो किसके लिए चाहिए हमें, NTFS। वी कैन गो फॉर लिस्टिंग द पार्टीशन NTFS, कौन सा है ये, 86, ओके। तो वी कैन स्पेसिफाई द कोड हियर, हेक्स कोड 86। so that partition is defined as a NTFS partition, again you can print it। and lastly this partition 7, SDC 7 will be used as a Linux LVM partition, क्योंकि लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट अगर आपको करना है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो अगर आपको यूज करना है LVM कमांड्स, तो आपको ये पार्टीशन को Linux LVM पार्टीशन डिफाइन करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो T अगेन कौन से पार्टीशन को करना है, 7th पार्टीशन को, उसका कोड आता है शायद से 8E या 8E is there for Linux LVM partition, okay, yeah, 8E for Linux LVM partition। तो अगर आपको लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट कमांड एग्जीक्यूट करना है या आपको पार्टीशन यूज करना है LVM के लिए, तो आपको पार्टीशन टाइप डिफाइन करना पड़ेगा E। So now that partition type is changed to Linux LVM, okay, you can print this। आगे हमारे सारे पार्टीशन जो हमें रिक्वायर्ड थे समझ में आई अभी, how we can toggle the partition। Yes, sir. Yes, sir. या अब ये चेंजेस यहाँ पे सेव्ड नहीं हुए, हमने जो पार्टीशन बनाया, अगर मैं क्यू करके बाहर आ जाऊंगा तो ये सारे पार्टीशन चले जाएंगे। नाउ आई वांट टू सेव ऑल दिस पर्टिकुलर पार्टीशन व्हिच आई हैव क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे W करूंगा, एंटर द button, the partition table has been altered and the partition is saved। now you can list SD, हमने किसके ऊपर किया था, SDC पे किया, okay। so now you can see all these partitions which we have created are available here। yes, available हो गई है, यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. या नाउ हम लोग स्वैप पार्टीशन बनाते हैं हमारे SDB5 को, फटाफट लेता हूं मैं। अब आपका कमांड है फ्री -m, हम लोग देखते हैं कि स्वैप स्पेस कितनी है। आप देखो फ्री -m, मैंने जब कमांड एग्जीक्यूट किया तो क्या दिया उसने, स्वैप की टोटल मेमोरी है, स्वैप मेमोरी अभी कितनी अवेलेबल है यहाँ पे, टोटल 1951, और फ्री कितनी है 1951। मैंने पार्टीशन कौन सा स्वैप के लिए डिफाइन करके रखा है, SDC5। So what I will do, I will go for the command mkswap and then dv/sdc and the partition name SDC5, है ना। Then setting a swap space version 1, size 1024 MIB, that is megabytes, and UUID is assigned to that. You can see that UUID is a
hexadecimal code which is assigned, but still that particular partition is not activated. You can see it. हमने MK swap से तो partition बना लिया, मगर उस swap partition activate हुआ है क्या? नहीं हुआ है. तो उसके लिए command हम लोग use करेंगे swap on, and what you have to do? You have to specify the partition name dev/sdc5. है ना? उसने कुछ मैसेज दिया क्या अभी? कैसे No, पता sir. करोगे अभी स्वैप वर्क? फ्री है, फ्री नहीं दिया ना? तो what is the one way log. you can see this p minus m. Earlier this space is 1951 and now that is 1 GB is added into that, so swap space will be increased. बढ़ा है कि नहीं है? यस सर, Yes sir. है ना? स्वैप ऑन करते बराबर. अगर मैं उसको स्वैप ऑफ कर देता हूं, and again I will go for the free minus m, again that comes to 1951 again. So swap on, swap off, and the partition name. How we can cross check? Free minus m command. वो नहीं है तो dmesg command यूज करो. dmesg और क्या था? पाइपिंग सिंबल टेल minus n and 1. एडिंग स्वैप ऑन आई लाइन. यहाँ पे स्वैप ऑन किया मैंने तो, है ना? एडिंग दिस नंबर ऑफ स्पेस स्वैप ऑन पार्टीशन दिस, दैट इज sdc5. तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो या फ्री कमांड से भी आप वेरीफाई कर सकते हो. सर बट हमने अभी स्वैप ऑफ किया था ना लास्ट. हाँ, हमारा कमांड क्या था? ओके, उसने ऑफ का नहीं एंट्री करता उसका लॉक का. अब फिर से अगर ऑन करो उसको, देन यू कैन सी ऑफ जो रहेगा उसका एंट्री नहीं करता है. वो जो लॉग है वो एक्टिवेट हुआ है उसका ही एंट्री है. फिर से हमने देखो उसको ऐड किया तो उसने फिर से ये मैसेज ऐड किया उसने लॉग फाइल में, है ना? सेकंड टाइम. हाँ सर. हाँ, अगर फिर से हम लोग ऑफ करके ऑन करेंगे तो अगेन थर्ड टाइम्स व्हेन आई स्विच ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टीशन, तो थर्ड टाइम वो ऐड करेगा. तो जितने बार मैं उसको एक्टिवेट करते जाऊंगा ही विल मेक ए एंट्री ऑफ दैट एडिंग स्वैप स्पेस. तो ऑफ का में एंट्री नहीं किया उसने. ऑफ की एंट्री नहीं होती है, जब एक्टिवेट होते हैं उसका एंट्री है. ठीक है? MKFS देखना है अभी. खत्म करें इसको, MKFS और माउंटिंग. यस और नो? सुनने का है क्या? स्टेमिना? यस. एक काम करते हैं हम लोग, MKFS के लिए इस पार्टीशन को NTFS के हम लोग टॉगल कर देते हैं, because we do not require that. तो partition 6, okay, and the type is Linux 83. ओके, तो MKFS कैसे करेंगे अभी हम लोग? We have to create a file system now. So then MKFS and dot. We can go for the core file system and the partition name, that is dv/sd. कौन सा partition था? 6 partition. Okay. And when you press the enter button, you can see that MK2 is creating a file system with these blocks and all nodes, allocating group table done, writing inode table done, creating journal done, writing super blocks and file system accounting information done. Okay, तो ये सारा हमारा हो गया MKFS से. हमने फाइल सिस्टम बना ली है इसके ऊपर. इवन आप प्राइमरी पार्टीशन जो आपने बनाया था उसको भी आप कर सकते हो, जैसे SDC1 में बनाया था. We can create a file system onto that. Okay.
एंड MKFS के बाद क्या था हमारा, स्वैप देखा हमने, MKFS देखा, उसके बाद what commands we have, mounting into FS, MK swap, ओके स्वैप हो गया, ओके MKFS, XFS भी शायद से उसमें है अवेलेबल, वी कैन चेक MKFS डॉट XFS, एक पार्टीशन हमारा 2 बचा था है ना, SDC2 primary partition we have kept, MKFS, SDC2 तो है, XFS शायद से नहीं होगा, SDC2 we can see JFS is available, command not found, XFS JFS नहीं है बोलता है, ओके ऑलरेडी उसके ऊपर हो गया है XFS JFS, तो ये हो गया। नाउ दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज नॉट अवेलेबल, DF से आप देख सकते हो कि कौन से पार्टीशंस एक्टिवेटेड है एंड कहाँ पे वो माउंटेड है, तो दिस पर्टिकुलर SDA1 इज माउंटेड ऑन टू द स्लैश बूट, ओके। तो DF से आप देख सकते हो कि कौन से पार्टीशंस बने हैं और कौन से लोकेशन पे माउंट है। अभी हमने पार्टीशन कौन सा बनाया, SDC1 है ना, SDC1 पे हमने ext4 फाइल सिस्टम बनाई थी, यस। तो नाउ हम लोग उसको माउंट करेंगे, तो माउंट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वी कैन क्रिएट a mkdir एंड वी कैन create one file that is my mount, okay। So I will create this directory, so I will list either the directory is created or not, so my mount directory is created and mount, what is the first argument, that is /dev/sdc1, तो फर्स्ट पार्टीशन हम लोग माउंट करेंगे इस लोकेशन के ऊपर /mount, okay। तो I am mounting that, Sir, my mount. my mount है सर, okay my, okay। तो मेरा जो है फाइल हमने, ओके, तो इट इज नॉट गिवन एनी मैसेज, तो यहाँ पे यही वेरीफाई करने की वे है कि उसने एग्जीक्यूट कर दिया, कोई एरर नहीं दिया, यानी वो तो हो गया प्रोसेस, बट स्टिल यू वांट टू कंफर्म, देन यू कैन एग्जीक्यूट द df कमांड, तो df कमांड विल शो यू दैट इज आइदर दैट इज माउंटेड और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो माउंट किया था ये पार्टीशन है ना, /dev/sdc1 and where that is mounted, that is at my mount location, है ना। यहाँ पे एंट्री हो गई यहाँ पे, so is it clear how we can mount? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, या इजी कमांड से। और यू माउंट में कैसे करेंगे हम लोग, यू माउंट एंड माउंट लोकेशन, तो यू माउंट अगर हम लोग करते तो इसके बाद अगर आप डीएफ करोगे तो यू कैन सी दैट दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज एडेड हियर विच इज रिमूव, माउंटिंग लोकेशन यहाँ से निकल गया है ना। यहाँ पे था पहले लास्ट एंट्री TMPFS के बाद /dev/sdc1 at my mount, but now we have unmounted that particular location, so that is removed from here। तो यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे my mount and df, तो ये माउंट हो गया। now that particular location is used to store the data, आप इस डायरेक्टरी में जो भी डेटा स्टोर करोगे वो कहाँ पे जाएगा, SDC1 के ऊपर। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? yes sir, Yes, sir. और ऑटो माउंटिंग कैसे करेंगे अभी हम लोग, FS टैब में एडिट करके, FS टैब में जाके है ना। और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ब्लॉक आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर UUID, तो एक BL के आईडी कमांड यूज होता है,
You can see that it will show the block ID of that particular partitions. सारे जितने भी partitions बने हैं मशीन के ऊपर SDA1 का UUID बता रहा है, टाइप बता रहा है, उसका XFS है, इसका LVM है, इसका swap है, जितने भी partitions हमने बनाए हैं, either that is a swap partition, so it will show that, है ना? It will list the partition name, it will list the UUID of that, it will show the टाइप ऑफ दैट XFS, LVM, swap, ext4, XFS, swap, ext4 जो हमने बनाए थे सारे, यहाँ से आप ले सकते हो। तो जैसे हम लोग ऑटो माउंटिंग किसका करेंगे अभी, ये वाले पार्टीशन का। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि टाइप मत करो, इसको टाइप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधे यहाँ से ब्लॉक आईडी लो, कॉपी करो, vi then /etc/fs टैब फाइल को ओपन करो। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने हैं ये फाइल सिस्टम, है ना? ये देखो, आप एंट्री मिली होंगी आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रूट का पार्टीशन है वो यहाँ पे उसने किया है, स्वैप पार्टीशन ऑलरेडी एडेड है। या नाउ वी कैन गो इनटू द इंसर्ट मोड, और इसके बाद में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। after the swap phase, okay, we can paste that particular UUID पेस्ट हो गया यहाँ पे। ओके, कहाँ पे हमें माउंट करना है, वो माउंट लोकेशन कहाँ पे करेंगे, क्या नाम था उसका, माई माउंट। और फाइल सिस्टम क्या थी, फाइल इसकी ext4 है कि नहीं। देन डिफॉल्ट्स, ये स्पेलिंग बराबर एंट्री करना है आपको, इसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। योर लोकेशन नेम फाइल सिस्टम डिफॉल्ट 00। तो आई हैव मेड अ एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड एस्केप कोलन W फॉर राइटिंग, ये सेव हो गया आपका, then escape and X. So now that particular entry is made into that। और आप एक काम करो, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करो, mount-a। तो mount-a जब आप करोगे, हमने तो पहले उसको ऑफ कर दिया था, है ना? यस, उसको मैंने ऑफ कर दिया था पहले कि इसमें। Yes, sir. Yes, sir. Now you can see DF, so that is auto mounted। हो गया माउंट यहाँ पे। हाँ सर। So is it clear how we can do the auto mounting? Yes, sir. सर 4 o'clock को टेस्ट है ना? हाँ बस यहाँ तक समझ में आ गई ये माउंटिंग। Yes, sir. Okay, so this is the end of this particular topic। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसके लिए पार्टीशन को यहाँ पे रिजर्व रखा है। ओके, LVM पार्टीशन को हमने क्या किया है, जो रिजर्व रखा है उसके ऊपर हम लोग LVM कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ तक के कमांड सब याद हो गए, समझ में आ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद। सर अटेंडेंस, स्टॉप शेयरिंग दिस। यस, अटेंडेंस। आप जेम्स लॉगिन करो आपका।